Hello friends, I am Chintan Joshi from Nalanda Vidyalay, and in this subject business studies, from today onwards we are going to start chapter number 8, that is controlling. Guys, in this chapter we are going to discuss only two topics in our two different video lectures. We are going to discuss in video lecture number 1 about concept and introduction of controlling, as well as what is the importance of controlling. In our second video, we are going to discuss about the process of controlling. So let me start from introduction of controlling. First of all, introduction. Guys, we are aware with management functions, right? There are basically 5 functions of management, starting from planning, organizing, staffing, directing, and controlling, right? So we can say that the last and most important function of management is controlling. It ensures whether all the work decided under the first 4 functions of management, that is the planning, organizing, staffing, and directing, are being performed in accordance to the plans or not. Right? What controlling is going to ensure, right? Whatever we have planned under first 4 functions of management is going to execute properly or accordance to them. If not, then remedial actions may be taken to avoid adverse consequences. Right? अगर फॉलो नहीं हुआ है तो हम उसके लिए रेमेडियल एक्शंस को लेंगे. So simple introduction about the controlling. Now let we have about the concept of controlling. Controlling is the process of comparing the actual performance with the standard, finding out the deviations, and if any, and taking corrective actions. देखो कंट्रोलिंग बेसिकली प्रोसेस क्या है. कंट्रोलिंग जो प्रोसेस है उसमें क्या किया जाता है, कंट्रोलिंग में जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उनको स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर किया जाएगा. राइट? वहां से फाइंडिंग्स निकाले जाएंगे. अगर कुछ डेविएशंस है तो उस डेविएशंस के सामने उसके ऊपर करेक्टिव एक्शंस लिए जाएंगे. Controlling is another important function of management which all the managers are required to perform. देखो कंट्रोलिंग ऐसा एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट का जो सभी मैनेजर्स को परफॉर्म करने की जरूरत रहती ही है. राइट? उनको करना ही पड़ेगा इन ऑर्डर टू कंट्रीब्यूट towards achievement of organizational objectives. A manager is required to exercise effective control over the activities of his subordinates. सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो यहाँ पर बताई गई है, इन ऑर्डर टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स. देखो यहाँ पर जो आपके लिए कीवर्ड्स है दैट इज अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स. ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, अ मैनेजर इज रिक्वायर्ड टू एक्सरसाइज इफेक्टिव कंट्रोल. राइट? मैनेजर को जो है वो इफेक्टिव कंट्रोल की जरूरत रहती है. उनके जो सबऑर्डिनेट रहते हैं वो सबऑर्डिनेट के ऊपर इफेक्टिव कंट्रोल अगर रहेगा तो मैनेजर जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएंगे. राइट? कंटिन्यू में देखते हैं. Thus, controlling can be defined as a managerial function to ensure that activities in an organization are performed according to the plans. तो देखो बेसिकली कंट्रोलिंग में क्या होता है कि कंट्रोलिंग में जो कुछ भी एक्टिविटीज प्री डिफाइंड है या तो जो कुछ भी प्लान्स हम लोगों ने प्री डिटरमाइन किए हैं, अकॉर्डिंग टू दैट, राइट, एक्टिविटीज जो है वो परफॉर्म हो रही है कि नहीं हो रही है उसको एंश्योर किया जाएगा. कंट्रोलिंग ऑल्सो एंश्योर्स efficient and effective use of organizational resources for achieving the goals. Hence, it is a goal-oriented function. देखो कंट्रोलिंग में एक और चीज ये भी की जाती है जहां पर इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी लेवल को एंश्योर किया जाएगा. तो इसके साथ हम ये भी कह सकते हैं कि जो
कंट्रोलिंग फंक्शन है मैनेजमेंट का, वो गोल ओरिएंटेड फंक्शन है। कंसेप्ट तक क्लियर हो सब लोग? यहां से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कंसेप्ट में ही। ऑफन कंट्रोलिंग एंड मैनेजमेंट कंट्रोल आर कंसिडर्ड सेम, हाउएवर देयर इज अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन द टू। देखो, ज्यादातर कंट्रोलिंग और मैनेजमेंट कंट्रोल को एक जैसा लोग समझते हैं, कंसिडर करते हैं, बट वहां पर क्या है, वास्ट डिफरेंस है। इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा गैप है, डिफरेंस है। वो क्या है, चलिए देख लेते हैं। Controlling is one of the managerial function, while management control can be defined as a process which managers follow to perform the controlling function. सबसे पहला डिफरेंस कि कंट्रोलिंग जो है वो मैनेजमेंट का फंक्शन है, वो मैनेजरियल फंक्शन है, राइट। जहां पे अगर हम देखें तो मैनेजमेंट कंट्रोल क्या है, तो मैनेजमेंट कंट्रोल वो एक प्रोसेस है जो मैनेजर्स फॉलो करते हैं कंट्रोलिंग फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, राइट। वन कंट्रोलिंग इज बाय डिफॉल्ट अ मैनेजरियल फंक्शन, whereas management control is being performed by managers, right? तो ये सबसे पहला डिफरेंस। सेकंड, मैनेजमेंट कंट्रोल refers to setting of predetermined standard, comparing actual performances with these standards, and if required taking corrective actions to ensure the achievement of organizational goals। देखो, ये जो है वो सबसे ज्यादा हाईलाइटेड पॉइंट है कि मैनेजमेंट कंट्रोल क्या है। मैनेजमेंट कंट्रोल में क्या किया जाएगा, तो वहां पर प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड को सेट किया जाएगा, एक्चुअल स्टैंडर्ड को जो है वो परफॉर्मेंस के साथ जज किया जाएगा, अगर जरूरत पड़ी तो करेक्टिव एक्शंस भी लिए जाएंगे, वो एंश्योर करने के लिए कि मैनेजमेंट के गोल जो है वो अचीव हो पाएंगे या नहीं, राइट। सो देयर इज अ डिफरेंस। कंटिन्यू में देखते हैं। Controlling function is performed in all types of organizations, whether commercial or non-commercial, and at all level. It means top, middle, and supervisory level of management. Thus, it is a pervasive function. देखो, यहाँ पर जो है वो चीज बताई गई है कि कंट्रोलिंग क्या है। कंट्रोलिंग जो है वो एक मैनेजमेंट का ऐसा फंक्शन है कि जो परवेसिव है। इट मीन्स कि वो हर जगह पे परफॉर्म होगा, चाहे वो कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन हो या तो नॉन कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो कोई भी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्यों ना हो, राइट। टॉप, मिडल और बॉटम लेवल, हर जगह पे वो परफॉर्म होगा। कंट्रोलिंग शुड नॉट बी कंसिडर एज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। एक्चुअल में हम लोग ये देखते हैं कि कंट्रोलिंग जो है वो सबसे आखिर में आता है, तो ये सबसे लास्ट फंक्शन है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। फ्रॉम द प्लानिंग इटसेल्फ controlling parallelly runs, right? The controlling function compares the actual performance with the predetermined standard, find out deviations and attempts to take corrective measurements, right? Controlling क्या करते हैं कि predetermined जो स्टैंडर्ड है उनको एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करेंगे, अगर उसमें कहीं पर डेविएशंस मिलते हैं तो उसको करेक्टिव एक्शंस में वो लोग कन्वर्ट करेंगे। तो बेसिकली इट इज नॉट लाइक दैट कि वो सबसे लास्ट फंक्शन है, राइट। ये पैरेलली चलता रहता है हर एक फंक्शन के साथ। सो इवेंचुअली दिस प्रोसेस हेल्प्स इन फॉर्मुलेशन ऑफ फ्यूचर प्लान्स टू। देखो, ये जो है ना करेक्टिव एक्शन वाला मोड, वो फ्यूचर प्लान को भी फॉर्मुलेट करता है। दस कंट्रोलिंग फंक्शन हेल्प्स इन ब्रिंगिंग द मैनेजमेंट साइकिल बैक टू द प्लानिंग। तो वापस से प्लानिंग की और मैनेजमेंट साइकिल को ये लेके जाएगा। चलिए देखते हैं डेफिनेशंस को। सबसे पहले है कुन्स और ऑर्डिनल की डेफिनेशंस। मैनेजरियल कंट्रोल implies the measurement of accomplishment against the standard and the correction of deviation to assure attainment of objectives according to plans। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन कुन्स ने दी है यहाँ पे। मैनेजरियल कंट्रोल है क्या, तो मैनेजरियल कंट्रोल क्या करता है। मैनेजरियल कंट्रोल implies the measurement of
accomplishment against the standard and the correction of deviation to assure attainment of objective according to the plans. हमारे जो प्री डिटरमाइंड प्लान्स है उनके मुताबिक ऑब्जेक्टिव्स के अटेनमेंट के लिए, अकम्प्लिशमेंट के लिए, फुलफिलमेंट के लिए, राइट, जो स्टैंडर्ड्स हमने सेट किए हैं उनको एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ मेजर किया जाएगा, उनको कंपेयर किया जाएगा, और अगर वहां पर डेविएशंस फाइंड आउट होते हैं तो उनको करेक्टिव एक्शन में कन्वर्ट किया जाएगा, राइट। सेकंड डेफिनेशन, कंट्रोल इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट कंफर्मिटी ऑफ परफॉर्मेंस विथ प्लान्ड एक्शन। देखो कंफर्मिटी क्या होता है, राइट, कंफर्मेशन लेना। अभी कंफर्मेशन किसके साथ लेना है, एक्चुअल परफॉर्मेंस का प्लान्ड एक्शन के साथ, राइट। सो इट इज ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग ऑफ कंफर्मिटी एज पर द हेनिंग। चलिए, दो डेफिनेशंस हमने आपकी यहाँ पर कंट्रोलिंग की देख ली। Now, what is importance of controlling? So, total 6 importance of controlling is given in your book, right? सबसे पहला है accomplishment or accomplishing organizational goals. Second one है judging accuracy of standards. Third one is making efficient use of resources. Fourth one is improving employee motivation. Fifth one is ensuring order and discipline. Last one is facilitating coordination in action. चलिए इसी इंपॉर्टेंस को वन बाय वन डिटेल में देखते हैं। सबसे पहला है accomplishing organizational goals. Controlling helps in comparing the actual performance with the predetermined standard. देखो ये चीज हम लोगों ने अच्छी तरह से समझ ली है कि कंट्रोलिंग क्या करता है। कंट्रोलिंग जो है वो प्रीडिटरमाइंड स्टैंडर्ड को एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करेगा। हेल्पिंग आउट डेविएशंस को फाइंड आउट करने के लिए हेल्प करेंगे, राइट। टेकिंग करेक्टिव मेजर्स टू एंश्योर दैट द एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द प्लान्स। फिर क्या होगा, करेक्टिव एक्शंस अगर जरूरत है तो लिए जाएंगे, ये एंश्योर करने के लिए कि जो हम लोगों ने प्लान्स डिसाइड किए हैं उसके मुताबिक अकॉर्डिंग टू दैट, राइट, एक्टिविटीज जो है वो परफॉर्म होती है कि नहीं होती है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट यही है कि बिकॉज ऑफ कंट्रोलिंग, राइट, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अकम्प्लिशमेंट और अचीवमेंट कैन बी पॉसिबल, राइट। क्योंकि अगर हमें पता ही नहीं है कि कितने एक्चुअल परफॉर्मेंस हुए हैं स्टैंडर्ड के साथ, तो हम कहां से अचीवमेंट की ओर आगे बढ़ेंगे। से फॉर एग्जांपल, इफ वी वांट टू ट्रैवल 100 किलोमीटर्स फ्रॉम जीरो, and in between if we are not going to assure that how much kilometers we have traveled, right, so how can we know how much kilometers we have to left in our journey. So accomplishment of organizational goals सबसे पहला। second one is judging accuracy of standard की accuracy को judge करना। an efficient control system helps in judging the accuracy of standard. देखो कंट्रोलिंग सिस्टम की एफिशिएंसी जो है वो एक्यूरेसी को जज करने के लिए हेल्प करते हैं। इट फर्दर हेल्प्स इन रिव्यूइंग एंड रिवाइजिंग द स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग टू द चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड द एनवायरनमेंट। देखो कंट्रोलिंग जो है वो फर्दर हेल्प करेगा, किसके लिए हेल्प करेगा, रिव्यूइंग एंड रिवीजिंग। देखो अगर वो रिव्यू करता है कि भाई जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उनका और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस का क्या मेजरमेंट है, उसको रिवाइज करेगा अगर जरूरत पड़ी अकॉर्डिंग टू द प्लान्स। इफ द ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस आर नॉट परफॉर्मिंग एट दैट टाइम, राइट, इट विल हेल्प टू रिवाइज द स्टैंडर्ड, राइट। जरूरत पड़ी तो वापस से स्टैंडर्ड को रिवाइज करने में भी ये सपोर्ट करेगा अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट ऑफ द बिजनेस। देखो बिजनेस का जो एनवायरनमेंट है इट इज कंटिन्यूसली चेंजिंग। वंस वी आर गोइंग टू सेट सम स्टैंडर्ड, राइट, and when we are trying to start the journey fulfillment of that standard, sometimes it happens that due to the environmental changes we have to reset our standards. At that time controlling helps us to revise the new standard, right। हम
हमें कहाँ पहुंचना था। अभी देखो बिजनेस एनवायरनमेंट में ये बहुत सारे चेंजेस हुए, तो अभी हमें स्टैंडर्ड वापस से सेट करने पड़ेंगे एक्सेट्रा। तो यहाँ पर कंट्रोलिंग जो है वो सपोर्ट करता है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इट इज द इम्पोर्टेंस of controlling, that it helps in judging accuracy of standards. Third one is making efficient use of resources. जो कुछ भी रिसोर्सेज है उनका एफिशिएंट यूज करने के लिए भी कंट्रोलिंग जो है वो हमें सपोर्ट करता है। कंट्रोलिंग चेक्स द वर्किंग ऑफ एम्प्लॉइज एट ईच एंड एवरी स्टेज ऑफ द ऑपरेशंस। देखो सबसे पहले ही हम लोगों ने देख लिया कि इट इज अ परवेसिव फंक्शन, वो हर लेवल पे रहेगा, राइट। वो हर काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में रहेगा, हर एक्टिविटी के साथ जुड़ा हुआ रहेगा, राइट। तो शुरू से ही एम्प्लॉइज को हर एक स्टेज पे ऑपरेशंस को मेजर करने के लिए, उसको चेक करने के लिए कंट्रोलिंग का सपोर्ट मिलता रहेगा। Hence, it ensures effective and efficient use of all resources in an organization with minimum waste or spoilage। तो इसी तरह से कंट्रोलिंग जो है वो क्या करेगा, वो हर एक लेवल पर, हर एक एक्टिविटी में, राइट, एंश्योर करेगा कि जो कुछ भी रिसोर्सेस हमारे पास है उसका इफेक्टिव और एफिशिएंट यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, राइट। और अगर ये चीज एंश्योर की जाती है तो उसके कारण ऑर्गेनाइजेशन को क्या फायदा मिलेगा, उनका जो वेस्टेज और स्पॉइलेज है वो मिनिमाइज होगा, राइट। सो इट अगेन एडवांटेज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, राइट। So we can say that it is the importance of controlling, that it makes efficient use of resources. Fourth one is improving employee motivation. Employees know the standard against which their performance will be judged. Employees को पता है कि उनके परफॉर्मेंस को कौन से स्टैंडर्ड के अगेंस्ट में जज किया जाएगा। Systematic evaluation of performance and consequent rewards in the form of increment, bonus, promotion, etc. motivate the employees to put in their best efforts। देखो सिस्टमेटिकली अगर इवेल्युएशन किया जाए परफॉर्मेंस का तो वहां से क्या फायदा मिलेगा, तो इंक्रीमेंट हो सकता है, बोनस मिल सकता है, प्रमोशन मिल सकता है। और ये सारी चीजें जो है वो एम्प्लॉय को मोटिवेट करेगी उनके परफॉर्मेंस को और ज्यादा इंप्रूव करने के लिए। देखो एज ए एम्प्लॉय हमें पता रहता है कि कौन से मेजरमेंट को ध्यान में रखते हुए मेरा प्रोग्रेस होने वाला है, राइट। सो दस हमें स्टैंडर्ड पता है कि which standards or which performance we have to complete, राइट। अगर हमने वो चीज कर ली तो हमारा इंक्रीमेंट होगा, या तो बोनस मिलेगा, से फॉर एग्जांपल प्रमोशन मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा, एक्सेट्रा। एक सेल्स का ही एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मुझे पता है कि मुझे 100 यूनिट से ज्यादा सेल्स पे एडिशनल इंसेंटिव या बोनस मिलने वाला है, राइट, एट दैट टाइम माय स्टैंडर्ड विल बी सेट, राइट। और मैं 100 से ज्यादा ही, 100 से ज्यादा ही जो है वो नंबर्स को, यूनिट्स को सेल करने की कोशिश करूंगा। सो दिस वे, राइट, इट improves employees motivation. Fifth one is ensuring order and discipline. Controlling ensures a close check on the activities of the employees। देखो सबसे नजदीक से कंट्रोलिंग जो है वो एक्टिविटीज को एनालाइज करता है। Hence, it helps in reducing the dishonest behavior of the employees and in creating order and discipline in an organization। देखो इसके कारण क्या होगा कि वो एम्प्लॉइज के डिसऑनेस्ट बिहेवियर को रिड्यूस करेगा, क्योंकि वो बहुत नजदीकी से एक्टिविटीज को एनालाइज करता है। तो इसके कारण क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन जो है वो मेंटेन रहेगा, या उसके स्टेप्स को, उसके ऑर्डर्स को वो जनरेट करेगा। So this way ensures orders and disciplines in the organization. Last one is facilitating coordination in action. Controlling helps in providing a common direction to all the activities of different departments and efforts of individuals for attaining the organizational objectives। देखो कोऑर्डिनेशन जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर है जो सारी एक्टिविटीज को सपोर्ट करता है। कंट्रोलिंग में क्या होगा कि कंट्रोलिंग विल हेल्प प्रोवाइडिंग अ कॉमन डायरेक्शन। सबसे की वर्ड है दैट इज अ कॉमन डायरेक्शन।
कंट्रोलिंग जो है वो हर एक एक्टिविटीज को एक कॉमन डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा। इसके कारण क्या होगा कि डिफरेंट डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज भी, अगर चाहे वो इंडिविजुअल भी क्यों ना हो, वो ऑर्गेनाइजेशन के कॉमन ऑब्जेक्टिव्स के अटेनमेंट के लिए, उसके अचीवमेंट के लिए एक डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे। डिपार्टमेंट अलग अलग हो सकते हैं, इंडिविजुअल्स भी सेपरेट हो सकते हैं, बट कंट्रोलिंग क्या करेगा, वो कॉमन डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा। एंड इन दिस वे, प्रोवाइडिंग द कॉमन डायरेक्शन, इट विल कोऑर्डिनेट ऑल द एक्शंस और एक्टिविटीज ऑफ द मैनेजमेंट। टोटल 6 इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। होप सो कि आप लोगों को यहाँ पर कोई डाउट्स नहीं है, बहुत ही इजी चैप्टर है, ओनली 2 टॉपिक्स आर देयर। In next video lecture we are going to discuss about the process of controlling, right? फिर भी यहाँ की डिस्कशन में इंट्रोडक्शन, कंसेप्ट एंड इम्पोर्टेंस में आप लोगों को कोई भी डाउट्स है तो हम लोग मैक मीटिंग में, लाइव मीटिंग में उसको सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।